Good morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine and doing great. So children, we will be starting today's English grammar class with the discussion of the password. Our password for today is symbol. SYMBOL symbol. It is a noun, ये संज्ञा है. The meaning of this word is a mark, a picture or a sign that shows something. It means एक ऐसा चिन्ह जो हमें कुछ दर्शाता है. Means the symbol itself is enough. हमें लैंग्वेज भी रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अ सिंबल सेज इट ऑल. जो सिंबल्स है वही हमें सब कुछ कन्वे कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली नो दैट दिस इज द सिंबल फॉर प्लस, दिस इज द सिंबल फॉर माइनस, एंड here we have another example, that is traffic sign and symbol, जिसे हम कह सकते हैं it shows that the road is bumpy ahead, bumps ahead, so the driver should be careful while driving. So a symbol says it all कि आगे रोड बम्पी है या बम्प्स हैं तो ड्राइवर को केयरफुली ड्राइव करना चाहिए. सो चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू दैट रोड साइंस और सिंबल्स हेल्प टू रन द ट्रैफिक स्मूथली. ट्रैफिक को स्मूथली रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए रोड साइन एंड सिंबल्स का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज अबाउट अवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास. चिल्ड्रन, एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी completed our topic in our English grammar book, that is verbs. So in today's class we will be revising this topic through the worksheet. So let us start. Children, as you know that we have completed the verbs chapter in our English grammar book. Now in today's class we are going to revise this topic. So we will be revising it through a worksheet. The worksheet I will be sending you after this class with the solution also. I want to tell you the matter that I am going to write in the worksheet, that same matter I have written it here. You don't need to copy this. आपको ये कॉपी नहीं करना है. You have to do the worksheet. आपको वर्कशीट में ही करना है. So this is for your understanding only. So as you know that what are verbs? Verbs क्या है? Verbs are action words or doing words. Words that show an action. Words जो कि एक एक्शन को शो करते हैं. एक्शन कौन करता है? एक्शन इज बीइंग डन बाय नाउन लाइक नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. उनके द्वारा जो एक्शन किया जाता है या काम किया जाता है वो वर्ड जो शो करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. उसे वर्ब कहा जाता है, डूइंग वर्ड कहा जाता है, एक्शन वर्ड कहा जाता है. सो एक्शन वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स. यू क्लियरली नो दिस थिंग. सो आवर एक्सरसाइज ए इज रिगार्डिंग दिस, that circle the action words. It means we have been given some words. Few of them are action words, few of them are noun. It may be कि ऐसा भी हो सकता है adjective भी हो. So we will be recalling the definition of adjective and noun also. So verbs you know very well. The action words or doing words are called verbs. What is a noun? Noun क्या होता है? Name, place, animal, things are called nouns. It means naming words are called nouns. ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि ये किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी एनिमल का नेम है या किसी थिंग का नेम है, वो क्या होते हैं? नाउन. एंड व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में हमें और बताते हैं. दैट डिस्क्राइब नाउन. एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है. नाउन का जो हम कह सकते हैं कि नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में, वो क्वालिटीज़ गुड हो सकती हैं, बैड क्वालिटीज़ हो सकती हैं. नाउन के अपीयरेंस के बारे में, नाउन के शेप, नाउन के साइज, नाउन के कलर, नाउन की काउंटिंग के बारे में जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो आवर एक्सरसाइज इज circle the action words. We have been given some words. We have to circle only the action words. However, I have written this. मैंने इसमें ऑलरेडी किया है, but we will be discussing it side by side. The first word is sing. Sing मतलब गाना. So गाना क्या है? काम है. जो कोई पर्सन या कोई गाना गा रहा है तो उसका एक्शन क्या है? गाना. So sing means गाना. So this is the action word. ये action word है. We have to circle it. Next, green. ग्रीन क्या है? ग्रीन एक कलर का नाम है. ग्रीन हम एडजेक्टिव के तौर पर भी दे सकते हैं. ग्रीन बोर्ड हम इस तरह से कह सकते हैं. ग्रीन इज अ नाउन. नाउन भी है, कलर का नाम भी है. सो दिस इज नॉट अ वर्ब. ये वर्ब नहीं है.
इसलिए हमने, दैट इज वाई वी हैव नॉट सर्कल्ड इट। नेक्स्ट वी हैव लाफ। लाफ क्या है? हंसी, हंसना। सो हंसना एक काम है, एक्शन है, किसी पर्सन का हो सकता है एक्शन कि लाफ, तो वी हैव टू सर्कल इट एज इट इज अ वर्ब। नेक्स्ट डक। डक क्या है? एनिमल का नेम है, सो ये नाउन है, वी विल नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट इज हाइड। हाइड मीन्स छुपना। छुपना क्या होता है? कहीं छुप जाना, तो वो एक्शन हुआ, वो किसी का भी एक्शन हो सकता है। तो हाइड क्या है? एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, सो वी हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट गिव। गिव मीन्स देना, कुछ भी देना। सो गिव, जो देना है वो एक एक्शन है, सो इट इज अ वर्ब, सो वी हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट वी हैव टॉक। टॉक मीन्स बातें करना, बात करना। टॉक इज अ एक्शन, ये एक्शन है, किसी का भी एक्शन हो सकता है। सो दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है, सो वी हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट क्या है? छोटा। तो छोटा क्या हो सकता है? कुछ भी छोटा हो सकता है। शॉर्ट, तो ये एडजेक्टिव है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो वी विल नॉट सर्कल इट, ये वर्ब नहीं है, सो वी विल लीव इट। नेक्स्ट स्काई। स्काई क्या है? आसमान, आकाश, इट इज अ नाउन, ये नाउन है, सो वी विल नॉट सर्कल इट। नेक्स्ट वी हैव स्किप। स्किप मतलब किसी चीज को मिस कर देना, वो भी स्किप होता है। और एक स्किपिंग क्या होता है? जो हम रस्सी के साथ करते हैं एक्शन, जो स्किपिंग हो सकता है, वो भी एक एक्शन है। और स्किप कर देना, मिस कर देना, वो भी एक एक्शन है। सो दिस इज वर्ब। वर्ब है, एक्शन वर्ड है, वी हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट इज थ्रो। थ्रो मतलब फेंक देना। सो फेंकना एक एक्शन है, काम है, किसी चीज को फेंका, लाइक ही थ्रू द बॉल, ही थ्रोज द बॉल, किस तरह से भी हो सकता है। सो ये एक्शन है, सो वी हैव टू सर्कल इट। नेक्स्ट दिस इज टेबल। टेबल क्या है? नाउन है, इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, तो वी विल नॉट सर्कल इट, ये क्या है? नाउन है, वर्ब नहीं है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग, that you don't need to write down this work. आपको ये work लिखना नहीं है. I will be sending you a worksheet as I do send usually. उसी तरह की मैं एक worksheet send करूँगी with the solution. So you have to do that worksheet. So you don't need to write down this work in your English grammar copy. So next exercise is exercise B. Underline the verbs in these sentences. So हमें इन सेंटेंसेस में वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, क्या एक्शन वर्ड है, क्या डूइंग वर्ड है, या क्या वर्ब है, वी हैव टू अंडरलाइन दैट। सो वी हैव बीन गिवन अ फ्यू सेंटेंसेस, हमें कुछ सेंटेंसेस मिले हुए हैं। लेट अस स्टार्ट रीडिंग दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट इज आई प्ले इन द पार्क। मैं पार्क में खेलता हूँ या खेलती हूँ। सो व्हाट इज माई एक्शन? मेरा एक्शन क्या है? प्ले करना। हम पार्क में खेल रहे हैं या घर में खेल रहे हैं, इट डजेंट मैटर, हमें क्या फोकस करना है? वी हैव टू look to only the action word. जो हमारा एक्शन है वो क्या है? प्ले। सो आई प्ले इन द पार्क, सो मेरा एक्शन क्या है? प्ले, सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड एज इट इज द एक्शन वर्ड, प्ले। इन द सेकेंड सेंटेंस, टीना राइट्स विद अ पेंसिल। सो टीना पेंसिल से लिखती है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ टीना? टीना ने क्या काम किया है, या टीना क्या काम करती है? वो लिखती है। वो पेंसिल से लिखती है या पेन से लिखती है, वो रेड पेन से लिखती है या रेड पेंसिल से लिखती है, इट डजेंट मैटर। सो टीना का जो एक्शन है वो क्या है? लिखना। सो राइट्स इज द डूइंग वर्ड हियर, वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। नेक्स्ट एट नंबर 3, राजा प्लेज क्रिकेट। राजा क्रिकेट खेलता है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ राजा? राजा ने क्या काम किया है, या राजा क्या काम करता है? प्लेज, वो खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। सो प्लेज इज वर्ब हियर, we have to underline this word. Next at number 4, a cook cooks food. एक जो कुक है, रसोइया है, वो खाना पकाता है। सो कुक क्या है? नाउन। कुक एक डूइंग वर्ड भी होता है। सो यहाँ पर वही मेंशन किया गया है। कुक का एक्शन क्या है? खाना पकाना, फूड को पकाना। सो वो एक्शन भी क्या है? कुक है। सो यहाँ पर एक कुक है, सो वी हैव रिटन हियर कुक्स। और अगर ज्यादा होते तो हम एस नहीं ऐड करते। सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ कुक? वो कुक्स करता है, वो कुक करता है, सॉरी, वो कुक करता है, तो कुक क्या है? एक्शन है, वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। नेक्स्ट एट नंबर 5, टॉम स्लीप्स इन हिज रूम। टॉम अपने कमरे में सोता है। तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ टॉम? टॉम क्या एक्शन करता है?
स्लीप करता है, वो अपने कमरे में स्लीप करता है, बट उसका एक्शन क्या है? स्लीप करना, सोना. सो स्लीप्स इज द डूइंग वर्ड हियर. नेक्स्ट एट नंबर 6, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर. एक जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो लेटर लाता है. ब्रिंग्स मतलब लाना, और पोस्टमैन का एक्शन क्या है? वो लेटर्स लेकर आता है. सो ब्रिंग्स क्या है? एक्शन है. वो क्या है? किसका एक्शन है? पोस्टमैन का. सो एक्शन वर्ड इज ब्रिंग्स हियर. सो वी हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज C. इट सेज choose the correct word. It means हमें correct word choose करना है. We have been given options out of which we have to choose the correct word. So as we know that the options given to us are all verbs और action words हैं वो सारे या doing words हैं, but we have to choose the correct word. Correct verb हमें correct action word choose करना है, and to fill that correct word हमें क्या करना है? properly read करना है sentence को. Then we will be able to know कि हमें कौन सा word या कौन सा action word वहां पर fill करना है. So at number 1, राम dash to God daily. राम भगवान से प्रार्थना करता है. राम भगवान से हर रोज क्या करता है? वर्क करता है, काम करता है. प्लेस खेलता है, या प्रेस. प्रेस मतलब प्रार्थना करता है. सो राम प्रेज टू गॉड डेली. राम हर रोज भगवान से प्रार्थना करता है. सो ये वर्क्स भी वर्ब है, प्लेस भी वर्ब है, एंड प्रेज भी वर्ब है. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड. करेक्ट वर्ब है, जो करेक्ट एक्शन वर्ड है या करेक्ट डूइंग वर्ड है, वो हमें चूज करना है. सो भगवान से वो क्या करता है? प्रार्थना करता है. एट नंबर 2, टीना डैश टेस्टी फूड. टीना टेस्टी फूड क्या? हम देखते हैं. ऑप्शंस हैं. प्लेस खेलती है, कुक्स पकाती है, रब्स रगड़ती है. सो क्या हो सकता है? विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? कुक्स. टीना कुक्स टेस्टी फूड. टीना टेस्टी खाना बनाती है, कुक करती है. कुक करना क्या हो गया? एक्शन हो गया. सो एट नंबर 3, वी शुड डैश अ बाथ डेली. हमें हर रोज नहाना. अब क्या? सो वी हैव ऑप्शंस. प्लांट अ बाथ डेली, टीयर अ बाथ डेली, टेक अ बाथ डेली. प्लांट मतलब प्लांट करना, उगाना, जो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं. टीयर मतलब फाड़ना, और टेक मतलब लेना. सो वी शुड टेक अ बाथ डेली. हमें हर रोज नहाना चाहिए, हमें बाथ लेना चाहिए. तो टेक क्या है? करेक्ट वर्ब, जो कि हमें यहाँ फिल करना है. एट नंबर 4, माई फादर डैश अ रेड कार. मेरे जो पिताजी हैं वो एक लाल कार क्या? सो लेट अस सी द ऑप्शंस. ड्राइव्स ड्राइव करते हैं, कट काटते हैं, स्विम्स तैरते हैं. सो विच विल बी द करेक्ट वर्ड? ड्राइव्स. सो माई फादर ड्राइव्स अ रेड कार. मेरे पिताजी एक लाल कार ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट एट नंबर 5, आई डैश द प्लांट्स रेगुलरली. मैं प्लांट्स को रेगुलरली क्या करता हूँ या क्या करती हूँ? ऑप्शंस आर. थ्रो फेंकती हूँ, वाटर पानी देती हूँ, कट काटती हूँ. सो विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन? वाटर. वाटर मतलब क्या है? एक तो वाटर नाउन है, पानी जिसको जो हम पीते हैं, बट एक वाटर है क्या है? एक्शन वर्ड भी है. वाटरिंग द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, वो वाला. सो आई वाटर द प्लांट्स रेगुलरली. मैं प्लांट्स को रेगुलरली पानी देती हूँ. Our next exercise is exercise G. Match the nouns with verbs. हमें नाउन्स को वर्ब से मैच करना है. मीन्स नाउन क्या एक्शन कर रहे हैं, वो नाउन को देखकर हमें करेक्ट वर्ब से मैच करना है. इन दिस कॉलम वी हैव बीन गिवन नाउन्स. हमें इस कॉलम में नाउन्स हैं, दिए गए हैं, और इस कॉलम में देयर आर वर्ब्स, कि वो नाउन क्या काम कर रहे हैं, हमें करेक्टली मैच करना है. सो वी आर गोइंग टू रीड द वर्ड्स or the noun words that are written in this column at first. Birds, bells, a fish, the sun. ये क्या है? nouns हैं. We are going to read the words that are written in second column. ये verbs हैं सब. Swims, तैरना, shine चमकना, fly उड़ना, ring बजना. So birds क्या करते हैं? How can we understand? हम कैसे समझ सकते हैं? बर्ड्स का एक्शन क्या हो सकता है? स्विम करना, शाइन करना, फ्लाई करना, या रिंग. सो बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स क्या है? उड़ते हैं. बर्ड का प्लूरल है बर्ड्स. बर्ड्स पक्षी उड़ते हैं. बेल्स, बेल भी प्लूरल में है, बेल्स है. घंटियां क्या है? रिंग करती हैं, बजती हैं. और ये बेल्स का एक्शन क्या है? रिंग.
अ फिश, फिश का एक्शन क्या है? अ फिश स्विम्स, फिश क्या है? तैरती है। द सन शाइन्स, सन क्या है? चमकता है। सन को, द सन को हम इस वर्ब से मैच करेंगे, शाइन्स चमकता है। सो नाउन को हम वर्ब से मैच कर रहे हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज डी, E. Fill in the blanks with verbs from the box. It means we have been given verbs in the box and we have some sentences here. We can have to complete the sentences by writing the verbs. हमें sentence को complete करना है verb लिखकर. So each and every sentence has a verb. उसमें कोई ना कोई verb होती है. We are going to read the verbs that are written in this box. Twinkle, hoot, eat, go. ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है या वर्ब है. सो लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1. वी डैश अ पिज्जा. हम पिज्जा क्या करते हैं? ट्विंकल, हूट, ईट या गो. वी ईट अ पिज्जा. सो दिस इज द करेक्ट वर्ब. वी हैव टू फिल इट हियर. एट नंबर 2, स्टार्स एट नाइट. स्टार्स रात में क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, हूट करते हैं एंड या गो करते हैं. सो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. स्टार्स का एक्शन क्या है? वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमकते हैं. सो ट्विंकल क्या है? वो वर्ब है. वी हैव टू फिल दिस वर्ड एंड राइट इट हियर. नेक्स्ट वी हैव वी डैश टू द पार्क डेली. हम पार्क में क्या करते हैं? नाउ वी हैव 2 वर्ड्स लेफ्ट, गो एंड हूट. सो हम पार्क में क्या करते हैं? वी गो टू द पार्क डेली. हम पार्क में डेली जाते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव द लास्ट सेंटेंस, आउल्स डैश एट नाइट. आउल क्या करते हैं? ये वर्ड ये जो कि लेफ्ट हो गया है, लेफ्ट है हमारे पास. वी हैव टू फिल दिस वर्ड हियर. ये एक्शन वर्ड क्या है? हूट. आउल्स का जो क्या एक्शन है? हूट करना. जो साउंड है आउल्स की वो बताई गई है. सो वो क्या है? हूट करना. आउल जो उल्लू है वो रात को हूट करते हैं. सो दैट वाज अबाउट द रिविजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 10 verbs. So I am sure the concept is clear to you now. So children, I want to remind you of this thing again, that you don't need to write down this work. आपको एक worksheet send होगी with the solution. You have to do that worksheet. So that's all for the English class today. We will be meeting in our next English class. Till then, bye bye. Take care.